Hello everyone, welcome to my channel. I hope you all are doing good. So guys, as per your demand, we are going to start with the revision questions of organic. In this video, we will do the paragraph questions, and in the next, we'll do the convergence and so on and so forth. We will revise the entire chemistry through questions. This I called as RTQ series or the revision through question series. Without wasting any time, let us start. And if you are new on this channel, then please do subscribe, and in the end, if you like this video, then please do hit the like button too. You can share it among your friends as well. Let us start. So this is your first question. It is saying, what is the approach of these questions is, first you read the whole question, analyze it, what the question is saying, write it, whatever possible products are given, and then we will move forward. Okay, so it is giving primary alkyl halide. So it is saying primary alkyl halide and C4H9Br. It is a primary alkyl halide C4H9Br. So it can be like this. I am just telling you the possibility. क्या क्या हो सकती है. Okay. So it can be like this or it can be like this. ऐसा भी हो सकता है. Okay. Then it is saying it reacts with alcoholic QH. So we know very well that with alcoholic QH, the reaction is dehydrohalogenation to give alkene. So हमें जो alkene मिल सकती है वो हमारी ये हो सकती है. We will move a little faster because the video will be very long and you don't have so much time. Exam is coming. Okay. So एल्कीन आपको ये मिल सकती है. एक ये पॉसिबिलिटी है एल्कीन की. सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ से पॉसिबिलिटी है. सेकंड पॉसिबिलिटी है कि आपको एल्कीन इस तरह की मिल जाए. ठीक है, सेकंड पॉसिबिलिटी है आपको एल्कीन इस तरह की मिल जाए. आगे पढ़ते हैं कि रिएक्शन क्या कह रही है. विच ऑन रिएक्शन विद HBr गिव्स C. हमें पता है कि HBr के संग जब भी रिएक्शन होती है तो हमारा मार्कोनिकॉव्स या एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल लगता है. एंड आपका जो एडिशन होगा Br का वो वहां होगा जहां पर लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे. ओके, तो आपका या तो ये प्रोडक्ट बन सकता है इसमें, या फिर आपका प्रोडक्ट क्या बन सकता है, यू कैन गेट दिस. यहाँ कार्बन पे एडिशन हो जाए तो यहाँ आपका Br लग जाए एंड यहाँ आपका CH3 आ जाए. सो दिस इज द पॉसिबिलिटी. आपको पॉसिबिलिटी तो आप लेके चलनी है, बाद में हम क्वेश्चन के थ्रू रूल आउट कर लेंगे उन्हें. ओके, सो it gives C which is an isomer of E. It means that these compounds A and C are isomers. So what is, so मतलब या तो ये या तो ये आइसोमर्स हैं आपस में. ओके, so when A reacts with sodium metal it gives D which is different when N-butyl bromide. So अब हमारी कंफ्यूजन यहाँ क्लियर हो गई. आ कंफ्यूजन इज क्लियर बिकॉज इट सेड N-butyl bromide reacts with sodium. So it means that the compound is not a straight change. So we'll eliminate this because N-butyl bromide जैसा प्रोडक्ट नहीं मिलता, तो मतलब N-butyl bromide तो ये नहीं है ना, ये वाला कंपाउंड तो N-butyl bromide है ही नहीं. तो we will rule out this possibility. So our A is this. So we'll read forward. When A reacts with sodium metal, it gives DC8H18, which is different when N-butyl bromide reacts with sodium. So जो हमारे क्लूज हैं वो मैच कर रहे हैं. ये है एंड ये इसका आइसोमर भी है. ओके, तो A हमारे ये रहा, हमारा B तो अब B इसके थ्रू बनेगा ये, तो ये हमारा B हो गया. एंड देन उसके बाद वो क्या कह रहा है, which on reaction with HBr gives C. So H on reaction with HBr will give this will be C. And
finally it reacts with A reacts with sodium metal. So the reaction of A with sodium metal, I hope you know the reaction. This reaction is Wood's reaction, the coupling reaction of two alkyl halides to give a dialkene. Okay, so we use Wood's reaction when we have to form a alkene with even number of carbon atoms. So if you have RBr and R dash Br and you use the sodium in dry ether conditions, then you get a product R dash. You know this very well. Okay, 2 times of sodium. Okay, so this is our Wood's reaction. So I take it as R. If I assume this group as R, अगर मैं इस ग्रुप को R मानूं, इस पूरे ग्रुप को अगर मैं R मान लेता हूं यहां से यहां तक, तो दिस इज RBr प्लस RBr. सो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा आर आर डैश. कुछ नहीं करना, बस इन दोनों को कपल कर देते हैं. CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH CH3. डोंट पुट बॉन्ड ऑन हाइड्रोजन. ये मेरे साथ प्रॉब्लम है क्योंकि मैं ऐसे लिख रहा हूँ जो जिसकी वजह से प्रॉपर आ नहीं सकता. अगर आप बॉन्ड को हाइड्रोजन पर ले जाएंगे तो गलत हो जाएगा. ठीक है, यू हैव टू ensure that your bonds are properly placed. So this is the final product D. चेक कर लो. C8H18 C8 1 2 3 4 5 6 7 8. Yes, C8 H18 3 and 3 6 7 8 9 10 11 12 12 and 6 18. So our product is correct. This is the question. First, I have put all the questions in sequence. First, you will get to see the questions of haloalkanes and haloarenes. Then we will move to alcohol phenols and ethers, then to carbonyls, and then to amines. Okay, we will move in a sequence. So, I hope this question is clear. If you have any doubt, then you can ask in the comment section as well as in the Telegram channel. Moving to the second question. So, what is the second question is saying? An organic compound A having molecular formula C3H6. So, पढ़ के पहले ही पता चल गया C3H6 means it is an alkene. Okay, and on treatment with aqueous H2SO4. So C3H6 is directly alkene है. It is not a cycloalkene too. Cyclic compound भी नहीं है ये कोई, and aromatic alkene भी नहीं है. Okay, C3H6. So the alkene can be this. ये आपकी एल्कीन हो गई. ओके, तो ये आपकी एल्कीन हो गई. आगे वो क्या कह रहा है? इट ऑन ट्रीटमेंट विद aqueous H2SO4 gives B. reaction with H2SO4 aqueous means H plus की कंडीशंस हैं, मतलब ये बॉन्ड H प्लस पकड़ेगा. ठीक है, गिव्स B. तो आपको जो आपको पता है एल्कीन के संग अगर हमारी एक्वस की कंडीशंस होती हैं और H2SO4 है तो ये हमारा अल्कोहल बन जाएगा. अल्कोहल बन जाएगा. कैसा अल्कोहल बनेगा? ये इस टाइप का अल्कोहल बन जाएगा. ओके, नेक्स्ट. तो हमारा प्रोडक्ट ए आ गया. अच्छा, मैंने ए ऐसे ही क्यों ले लिया? क्योंकि ए की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. आप इसका कोई आइसोमर ही नहीं बना सकते. देयर इज नो आइसोमर पॉसिबल एंड दिस इज बी. ओके, नेक्स्ट. अच्छा, आप इसे मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ से भी कर सकते हो कि आपका जो OH है वो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन जिसके पास होंगे उसके पास जाएगा. तो इस तरह से भी आप इस प्रोडक्ट को सोच सकते हो. पॉसिबिलिटी तो ये भी थी यहाँ पर OH लग जाए. तो आपको यू हैव टू रिमेंबर मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल इन दिस क्वेश्चन. ओके,
gives B, which on treatment with zinc chloride HCl gives C. So this we know very well. You as reagent condition. This is one of the method to prepare alkyl halides. So it will prepare alkyl halide. This is the alkyl halide. We will get C. Okay. Next, C on treatment with ethanolic QH gives back A. We know that alcoholic QH की जो reaction होती है, it gives alkene back. We know this very well. So our question solution is correct because all the conditions are matching. Identify A, B, and C. We have identified A, B, and C. This question is solved. Okay, moving on to the next question. This was an easy question. Third one. This we have something related to aromatic. Okay, an aromatic compound A on treatment with CHCl3 KOH gives two compounds B and C. Okay, if you remember, then this is a condition for Remus-Stevens reaction. Remus-Stevens reaction की condition है ये. An aromatic compound A है, तो it might be a phenol. ये मेरे को लग रहा है कि एक फिनॉल होगा क्योंकि फिनॉल ही इस कंडीशन में रिएक्ट करके दो कंपाउंड बी एंड सी है, तो दिस विल बी, तो इसमें जो CHO लगता है वो ऑर्थो पर लगेगा या पैरा पर लगेगा. देयर आर टू पॉसिबिलिटीज. It can be ortho substituted or para substituted. So B and C can be ortho or para. This I am assuming just on the basis of this reagent because I got to see this reagent. And this is a condition for Remus-Stevens. Okay, so you have to think in that way. Both give same product B when distilled with zinc dust. Means B and C are ortho or para substituted and they are giving the same product with zinc dust. Okay, so next, oxidation of D gives E having molecular formula C7H6O2. So this is O2, okay, and C7H6, it means we have a benzene ring, and with benzene ring we have now one carbon left. C7H6 के लिए 1 2 3 4 5 पांच कार्बन तो हो गए, तो यानी एक ही हाइड्रोजन आएगा. And O2, this is CHO2, so it can be COOH. It can be COH. I'm just uh, taking the possibilities. The product can be this. Okay, so E can be this. Having molecular formula this, sodium salt of E. Sodium salt का मतलब तो यही हो गया कि it is acid. Carboxylic acid. E is this only. Confirmed. Okay, sodium salt means COO negative, Na positive. This is the meaning of sodium salt. Having on heating with soda lime gives F. We know that very well. On reaction with soda lime we get this benzene. This is RF. Okay, ये reaction हमने पहले भी पढ़ी है alkanes में 11th class में भी, which may also be obtained by distilling A with zinc dust. So distilling A with zinc dust, we know very well on distilling A with zinc dust we get benzene. So A is a phenol. So इतना पक्का हो गया. अब हम चीजों को समराइज कर लेते हैं. A is a phenol. बिल्कुल ठीक बात है ये. This is our A. B and C are this phenol and this is CH. This is B and this is C. Okay, and we know this very well. This reaction this CHCl3 KOH, it generates carbene which attacks
carbene is generated, where the pi bond of benzene will attack here. Okay, so this is our B and C. Then oxidation of sorry, both give the same product D when distilled with zinc dust. Both will give the same product D when distilled with zinc dust. Okay, so we know very well with zinc dust this OH will vanish like here, and only CHO will remain. Okay, only CHO will remain. Same products HCH. So these are same products only. Okay, so these are our D. Then oxidation of D gives E. We will know very well oxidation of aldehyde will give acid. This is our E, and then it is our F is benzene. Okay, so this was a base question. You can practice it before exam. It is a good question. If you know Riemann-Tiemann reaction, then only you can solve this question. Okay, let us move forward with our next question. This is our next question. This is from carbonyl compounds part. So, an organic compound A was hydrolyzed with dilute H2SO4 to a carboxylic acid B and an alcohol C. इससे हमें साफ साफ पता चलता है, we get to infer that carboxylic acid and alcohol means A is an ester. Okay, A is an ester. So A can be something like this, and double bond O and something like this. I'm just assuming. So to give a carboxylic acid B and an alcohol C. So on the cleavage of the ring, we'll get to have an acid and an alcohol. Okay, clear? Oxidation of C with chromic acid produces B. It is a very important line. Very important. Oxidation of C with chromic acid means oxidation of C means alcohol with chromic acid. We know chromic acid is a very strong oxidizing agent, and it doesn't stop at aldehyde, it directly moves to acid. Oxidation of C with chromic acid produces B means B and C means it is a symmetric ester, because we get to have same number of carbon atoms in B and C both. So if we have C double bond O, then the ester will be like this. Like this. Okay, 4 here, 4 here. Okay, so it was hydrolyzed with dilute H2O to a carboxylic acid B and an alcohol C. So this is our carboxylic acid part, and when the bond will be cleaved, we will get this as acid with 4 number of carbon atoms and alcohol with 4 number of carbon atoms. So when this will oxidize with chromic acid, we'll get an acid, this only, we'll get the same acid, means this is a symmetric acid. So product A is this, and then carboxylic acid B will be butanoic acid, and alcohol C will be 1 2 3 4 butane all. Okay, alcohol will be butane all because everything is symmetric. Okay, so C on dehydration gives but1ene. We know very well C on dehydration will give, and the dehydrating agent can be conc H2SO4 443 Kelvin. This will be but1ene. Okay, so from here also
we get a clarity that butanene can only be obtained from butanol. So fourth is butanol. Sorry, C part is butanol. From here also we got a clarity. Okay, going forward to the next question. Fifth question. Fifth question is saying an organic compound contains 69.77% carbon, 11.63% hydrogen, and rest is oxygen. Molecular mass is this. So this question has become a little lengthy. It can come in, I think, 3 marks, or the examiner is lenient. He can give in 5 marks also. Okay, it is just a question to increase your time. Nothing difficult, simple empirical formula or molecular formula, 10th class concept. Okay, 69.77%. So first we used to make a table, carbon, hydrogen, oxygen. Then we used to write the percentage abundance, 69.77, then 11.63, and this will be 18.6. Then we used to write our that atomic weight. This is carbon is 12, hydrogen is 1, oxygen is 16. Okay, then we used to divide them to get a ratio. So if we divide these two, I have already divided, we'll get 5.81. And if I divide this will be 11.63, and if I divide them, it will be 1.16. Then fourth step was to get to divide them by the least number, that is in among them the least one is 1.16. So we'll divide all by 1.16. 5.18 divided by 1.16, this divided by 1.16, and 1.16 divided by 1.16. So we'll get, here we will get 5, 10 and 1. Okay, so our empirical formula will be C5H10O. I'm moving up quite fast because so that your time doesn't get wasted. Okay, you can pause the video and solve the question on your own. Okay, so this is our empirical formula. Our empirical formula, if we calculate the empirical formula weight, it will be 86. You can calculate 12 into 5, 60 plus 10, 70 plus oxygen 16, that is 86. And molecular formula, molecular mass is also 86. So our n is 1. When n is 1, then empirical formula is equals to molecular formula. So our molecular formula is C5H10O. Okay, C5H10O. Next, we move forward. Now the interesting part, and you have to revise this question before exam, definitely. Okay, this is an important question, and when I say it is important, it means it is important. There are no if and buts and so. Okay, then it says it doesn't reduce tolerance reagent. Okay, so it has carbon, it has oxygen, it has hydrogen, means it is a carbonyl compound. Simple. It doesn't contain two oxygen, it means it is not an acid, it is not an carboxylic acid. It is probably an aldehyde or a ketone. Probably. It can be ether as well, it can be alcohol as well. But seeing these tolerance reagent, it got stuck in my mind that it can be an carbonyl compound, because the question is talking about tolerance reagent. It means he is not talking about alcohol or ethers. Okay, so you have to rule out these possibilities on your own. You have to think like that, and it comes only by practice. So the question is saying it doesn't reduce tolerance reagent. So it should strike in your mind that it doesn't reduce tolerance. It means it is not an aldehyde. एल्डिहाइड नहीं है वो. ओके, क्योंकि वो टॉलेंस को रिड्यूस नहीं कर रहा है, but forms an additional compound with NaHSO3. This is a property of carbonyl compound. So it is surely a carbonyl compound, but it is not an aldehyde, means it can be a ketone and gives a positive iodoform test. यहाँ से तो बात खत्म ही हो गई. It gives a positive iodoform का मतलब है उसके अंदर CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप है. I'm sorry, इसका मतलब उसके अंदर CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप है. This group is present.
सो अगर हम इस फॉर्मूले में फ्रेम करें इसे, तो हम अपने कंपाउंड को ये कह सकते हैं कि हमारा कंपाउंड ये है, ये कह सकते हैं ना। देखो 5 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है, 3 और 2 5 और 2 7 और 3 10 और एक ऑक्सीजन है। हम इसे कह सकते हैं कि ये हमारा कंपाउंड है। हाँ, हम तो कह तो इसे भी सकते थे, हमें तो पॉसिबिलिटीज बनानी है। अगर एग्जामिनर ने ये दे दिया होता तो हम मना थोड़ी कर देते उसे, मना कर देते। 3 और 3 6 और 7 और 3 10, अब ये भी वही है। पर वो कह रहा है, अब आगे की कंडीशंस बताएंगी ना, आगे क्या कह रहा है वो कह रहा है ऑन विगरस ऑक्सीडेशन इट गिव्स इथेनोइक एसिड एंड प्रोपेनोइक एसिड। तो अगर इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो कहाँ से बॉन्ड क्लीव होगा, यहाँ से। ये हमारा जो होता है, ये स्मॉल जो होता है वो हमेशा कार्बोक्सिलिक, ये सी डबल बॉन्ड ओ के साथ चला जाता है, ये याद रखना। तो इट गिव्स इथेनोइक एसिड एंड इट गिव्स प्रोपेनोइक एसिड, बात तो ठीक है। पर अगर हम यहाँ क्लीव करेंगे तो ये प्रोपेनोइक एसिड नहीं मिलेगा, यहाँ उसका आइसोमर मिलेगा। तो ये वाली पॉसिबिलिटी रूल आउट हो गई। क्वेश्चन अपने आप में क्लियर कर देगा आपको कि वो क्या करवाना चाहता है, आपको कोई कंफ्यूजन का मौका नहीं देगा एग्जामिनर। ठीक है। सो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, पहले आपको पूरा निकालना पड़ेगा एम्पेरिकल फॉर्मूला, देन मॉलिकुलर फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, देन मॉलिकुलर फॉर्मूला निकालने के बाद आपको टॉलरेंस ऑफ फेलिंग्स की नॉलेज होनी चाहिए। केमिकल टेस्ट छोड़ के नहीं जाने हैं, हिंसबर्ग टेस्ट, आइडोफॉर्म, फेलिंग, टॉलिन, जो है आपको सारे टेस्ट करने हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है। साथ में आपको रिएक्शंस बताना चाहिए, ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट की, सिल्वर मिरर टेस्ट की, आइडोफॉर्म की, सारी रिएक्शंस पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारा कंपाउंड क्या हो गया, ये हो गया ये। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an organic compound A with molecular formula C5H8O2 is reduced to N-pentane on treatment with zinc HgHCl. A forms a dioxide with hydroxylamine and gives positive iodoform test and tolerance test. मेरे को कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं आता। मेरे को सिर्फ इतना पता है कि ये पॉजिटिव आइडोफॉर्म दे रहा है और पॉजिटिव टॉलरेंस दे रहा है। मतलब इसके अंदर ये ग्रुप तो है ही, पर अगर ये ग्रुप हो गया होता तो ये टॉलिन क्यों देता, टॉलिन तो नहीं देना चाहिए था इसे। तो मतलब इसके अंदर एक एल्डिहाइड ग्रुप भी है, दोनों ग्रुप है, क्योंकि दोनों टेस्ट दे रहा है ये, और दोनों टेस्ट एक ही चीज तो नहीं दे सकती। तो मतलब इसके अंदर दोनों ग्रुप है। तो अगर ये C5H8O2 है तो हम इसे एसिड ना माने। ठीक है, फॉर जो है, इट इज माई रिक्वेस्ट, डोंट assume it to be an acid, first read the whole question. It gives positive iodoform and positive tolerance. It means it has both methyl ketone group and it has CHO group both. अब ये कहाँ कहाँ लगे हैं तो देखो, CHO C5 है, 2 3 4 5। ओके, अच्छा। अब कोई कह सकता था ये देखो, ये तो यहाँ ही लगेगा, मिथाइल कीटोन बन रहे हैं ऐसे। ठीक है, अब कोई CHO यहाँ लग सकता है। अब कोई कह सकता था कि ऐसे लगा लूं, कोई गलत थोड़ी है। हाँ, बिल्कुल गलत नहीं है, इट इज नॉट रॉन्ग। क्या गलत है इसमें, 5 कार्बन है, CHO सी डबल बॉन्ड लगा है और फॉर्मूले को भी वैलिड कर रहा है, 8 हाइड्रोजन है तो इसमें 8 ही है, क्या गलती है। okay. आगे बताएगा क्वेश्चन, पढ़ो क्वेश्चन को, क्वेश्चन अपने आप क्लियर कर देगा चीजें। आगे वो बोलता है इट इज रिड्यूस टू एन पेंटेन ऑन ट्रीटमेंट विद जिंक HgHCl। तो आपका ये क्लेमेंसन रिडक्शन है। क्लेमेंसन रिडक्शन हमें पता है कार्बोनिल कंपाउंड्स को एल्कीन में कन्वर्ट कर देता है, और एन पेंटेन में ये तो कन्वर्ट होने से रहा, एन पेंटेन में ये तो कन्वर्ट होगा ही नहीं। क्लेमेंसन रिडक्शन हुआ या वोल्फ किश्नर रिडक्शन हुआ या फिर आपका ये वाला रिडक्शन हुआ, ये प्रोटेक्ट करने के बाद इससे रिडक्शन हुआ, आपका जो है स्ट्रेट चेन अगर एन पेंटेन बन रही है, आपका एल्केन्स बनाने के लिए रिएक्शन यूज होती है। पर इसमें याद रखना, जो हमारी एसिड सेंसिटिव होती है, हमारी क्लेमेंसन रिडक्शन पर वोल्फ किश्नर एसिड सेंसिटिव नहीं होती। ठीक है, ये चीज याद रखना। जो हाँ, तो ये प्रॉब्ली यही है मेरे लिए, तो ए यही है, क्योंकि इससे तो एन बनने से रहा। ओके, सो इट ए इज प्रॉबली दिस is reduced to and treatment. A forms a dioxide with hydroxylamine, so it forms a dioxide, we know very well, with hydroxylamine,
एक इस ग्रुप के साथ बनेगा और एक इस ग्रुप के साथ बनेगा। वी नो दिस वेरी वेल, डाइऑक्साइन बन जाएगा एंड गिव्स अ पॉजिटिव आइडोफॉर्म एंड टॉलरेंस टेस्ट आइडेंटिफाई ए। तो ए हमारा ये रहा, क्वेश्चन सॉल्व्ड। सोचना है वैसे, यू हैव टू थिंक लाइक दैट, ओके, एंड इट विल कम ओनली बाय प्रैक्टिस। अगर आपको अभी दिक्कत हो रही है, कोई समस्या की बात नहीं है, इस वीडियो को दोबारा देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसके लिए केमिस्ट्री आपको पूरी रिएक्शन सारी याद होनी चाहिए, स्ट्राइक करनी चाहिए वो दिमाग में, ठीक है ना। सो हम लोगों ने अल्कोहल फिनॉल्स कवर कर लिया, हेलो एल्केन्स कवर कर लिया, कार्बोनिल ग्रुप पर है, इसके बाद हम अमीन्स पर जाएंगे, ठीक है। सो आई एम मूविंग इन अ सीक्वेंस। और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी करा सकता था आपको, पर उसमें आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो जाता, तो आई एम मूविंग इन अ सीक्वेंस, ओके। नेक्स्ट, moving on to the next question. Next question is, an alkene A on ozonolysis gives a mixture of two compounds B and C. So C5H10. We have an alkene C5H10. So this is an alkene C5H10, and it gives on ozonolysis gives a mixture of two compounds B and C. B and C. हमेशा याद रखना, जब भी एल्कीन का क्वेश्चन हो और दो कंपाउंड्स ही आएंगे तो ये कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं। एंड अगर आपको अपनी डिजायर्ड एल्कीन तक पहुंचना हो तो दोनों कार्बोनिल कंपाउंड्स के ऑक्सीजन के थ्रू उन्हें ज्वाइन कर दो, आपकी एल्कीन मिल जाएगी। सपोज करो आपको कंपाउंड मिला ये RCHO प्लस HCHO, आपको एक कंपाउंड मिला सपोज करो, और आपको पता करनी है एल्कीन कौन सी है, बस इन दोनों को कंबाइन कर दो ऐसे करके। और इस वाले पार्ट को हटा दो तो आपको एल्कीन मिल जाएगी आपकी, ठीक है। ये होता है शॉर्टकट एल्कीन पता करने का, ओके। चलो ठीक है ना, चलो आगे बढ़े क्वेश्चन को। लेट अस रीड द क्वेश्चन। C5H10, ओके। तो हमारी एल्कीन ये भी हो सकती है, हमारी एल्कीन, मैं तो पॉसिबिलिटी बना रहा हूँ, ये भी हो सकती है, हमारी एल्कीन ये भी हो सकती है ना। कुछ भी हो सकती है, होने को तो कुछ भी हो सकता है, होने को तो ये भी हो सकती है ना। ओजोनोलिसिस हुई, ओजोनोलिसिस हमारी O3, ठीक है ना, O3 ओजोन के साथ होती है। Gives a mixture of two compounds B and C. Compound B gives positive Felling's test. Positive Felling's मिल रहा है इसमें, means it is an aldehyde. And also reacts with iodine and NOH, means it is a, okay, it gives positive Felling's. Aldehyde या फिर methyl ketone. Methyl ketone also respond to this test. And compound B gives positive Felling's test and also gives reacts with iodine and NOH. It means it is a methyl ketone. Okay, it is this type of compound. Compound C does not give Felling's test but forms iodoform. Compound C is also a methyl ketone. Okay, identify A, B and C. तो हमारा ये फेलिंग टेस्ट नहीं दे रहा है C। देखो अब क्वेश्चन को, मिथाइल कीटोन ग्रुप तो दोनों में है, मिथाइल कीटोन ग्रुप इज प्रेजेंट इन बोथ CH3 C डबल बॉन्ड हो, CH3 C डबल बॉन्ड हो। क्वेश्चन ने आप कैसे क्लियर किया, अपने आप को जस्टिफाई कैसे करता है क्वेश्चन। क्वेश्चन ने बोला कंपाउंड बी तो पॉजिटिव फेलिंग्स दे रहा है, यानी कंपाउंड बी एक एल्डिहाइड है, कंपाउंड बी एक एल्डिहाइड है क्योंकि वो फेलिंग दे रहा है, और फेलिंग एल्डिहाइड ही देते हैं, कीटोन नहीं देते। और कंपाउंड सी फेलिंग्स नहीं दे रहा है, यानी कंपाउंड सी एक कीटोन है, ऐसा कहा है। तो मैंने क्या कहा था, बी एन सी को कंबाइन कर लो, आपकी एल्कीन मिल जाएगी। तो हम कंबाइन कर लेते हैं बी एन सी को, फिर हम चेक करके भी देख लेंगे। देखो यहां से गया तो CH3 CH डबल वन C CH3
CH3। ये हमारी डिजायर्ड एल्कीन होगी कंपाउंड ए। This is a desired alkene compound A because it is saying A on ozonolysis gives two mixture B and C। तो इसकी ozonolysis करेंगे तो हमारे को दो मिक्सचर मिल जाएंगे। पॉजिटिव फेलिन्स ये देगा और जो है आपका आयोडीन के साथ भी रिएक्ट करेगा और ये हमारा नेगेटिव फेलिंग्स टेस्ट देगा। ओके, और ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। An organic compound A gives orange red precipitate with 2,4-DNP। 2,4-DNP, ओके, जैसे हम लोग ब्रैडीज रिएजेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? ब्रैडीज रिएजेंट। ब्रैडीज रिएजेंट लिखा आ जाए ना, डर मत जाना, ब्रैडीज रिएजेंट ही कहते हैं इसे। An organic compound A C4H8O orange red precipitate दे रहा है, means it is giving positive DNP test and positive 2,4 DNP test is for carbonyl compounds only। ठीक है, तो हमें और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। C4H8O से एक कार्बोनिल कंपाउंड सोचना है मुझे, तो मैं इसे एक काम करता हूँ, मैं सोच लेता हूँ एक, मैं ये सोच रहा हूँ और एक ये सोच लेता हूँ। ठीक है, ये दोनों सोचे मैंने, अगर कोई आइसोमर होगा तो बाद में देखेंगे। ओके, इट डजंट रिड्यूस टॉलेंस। टॉलेंस टेस्ट नहीं देता वो, टॉलेंस नहीं देता तो मतलब वो एक एल्डिहाइड नहीं है। कट, पॉसिबिलिटी रूल आउट हो गई। इट डजंट गिव टॉलेंस बट गिव्स येलो प्रेसिपिटेट ऑफ आइडोफॉर्म, मींस इट इज अ मिथाइल कीटोन। मींस अब तक तो इसका कहानी सही चल रही है, यही है, क्योंकि इसके अलावा इसकी पॉसिबिलिटी आइसोमर की कोई नहीं हो सकती। इट इज अ मिथाइल कीटोन, so the possibility is this only for methyl ketone. So A is probably this in my knowledge. Okay, so it doesn't reduce tolerance but gives yellow precipitate with NaOH Ni2 compound A on reduction with NaBH4. We know NaBH4 is the reducing agent which reduces our carbonyl compounds to alcohol. Okay, so it will reduce this to OH। अगर आपको NaBH4 की जगह LaLH4 दे, अगर आपको जो है ZnBH4 होल ट्वाइस दे, सेम काम ही करते हैं। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ये हो गया आपका गिव ऑन रिडक्शन विद जो NaBH4 गिव B, ये आपका B हो गया रिडक्शन करने के बाद। Which undergoes dehydration on heating with conc H2SO4 to give C। आपको पता है डिहाइड्रेशन करते हैं conc H2SO4 443 केल्विन के साथ, आपका जो प्रोडक्ट बन जाता है ये। इसमें हम जो है वो सेड्जेफ रूल लगाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट मेजर बनेगा, क्योंकि ये जो है ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट है। सेड्जेफ प्रोडक्ट जो होता है आपका मेजर बनता है। आपका प्रोडक्ट ये भी हो सकता था कुछ और, पर ये सेकेंडरी है तो आपको ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट सी ऑन ओजोनोलिसिस गिव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल। अगर आपको ऐसे नहीं करना, सेड्जेफ के लिए नहीं दिक्कत आ रही है, तो उसने एक और हिंट दी है, 2 मॉलिक्यूल इथेनॉल के मिल रहे हैं, इथेनॉल के दोनों मॉलिक्यूल को जोड़ दो। मैंने आपको शॉर्टकट तो सिखाया ही है, दोनों मॉलिक्यूल्स को इथेनॉल के जोड़ दो तो आपको एल्कीन आपकी ऐसी मिल जाएगी। ये हटा दो, व्हाट यू विल गेट इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। यही तो मिला था हमने यहाँ से, यही तो लाए थे हम यहाँ से, सेम ही तो है। मीन्स what we thought from SAID-ZEF product is the same we have got from ozonolysis। शॉर्टकट से आपको मिल गया वही, तो यू कैन थिंक इन ईदर ऑफ द टू वेज, इट्स योर चॉइस, जो आपको समझ में आए, जो आपको इजी लगे। ओके, लेट अस मूव फॉरवर्ड with the next question. Next question is an organic compound A has characteristic odor
कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर हमारी जो होते हैं, आपको ये ध्यान रखना है, किसकी फिश लाइक ऑर्डर होती है, किसकी जो होती है कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होती है। कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर जनरली कार्बोनिल कंपाउंड्स की होती है, ठीक है। फिश लाइक ऑर्डर जनरली अमीन्स की होती है। तो यू हैव टू have a little idea regarding their order also. स्वीट स्मेलिंग एस्टर्स होते हैं, एसिडिक एनहाइड्राइड्स होते हैं, है ना, सॉरी एसिटोफिनोन्स होते हैं। On treatment with any which it forms B and C means on treatment with any which it forms B and C। अब तो कुछ पता नहीं लग रहा। कंपाउंड बी C7H8O, इससे मेरे को लग रहा है कुछ एरोमेटिक कंपाउंड कुछ है। इससे मुझे लग रहा है कुछ एरोमेटिक रिंग तो आएगी आएगी कार्बोनिल कंपाउंड में, और ये C डबल बॉन्ड हो तो आएगा ही आएगा। अब एसिड हो, एस्टर हो, या आपका इसमें वो हो, क्या कहते हैं, कीटोन हो, ये डिपेंड करता है। आगे पढ़ रहे हैं क्वेश्चन को, उसके लिए इट फॉर्म्स बी एन सी। कंपाउंड बी ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स बैक ए। बी का ऑक्सीडेशन करा अगर, तो आपको ए मिल गया दोबारा। तो यानी बी का ऑक्सीडेशन करने के बाद ऑन ट्रीटमेंट विद NaOH इट फॉर्म्स बी, यानी बी आपका ऑन ट्रीटमेंट विद NaOH इट फॉर्म्स बी एन सी। सॉरी, माय मिस्टेक, मैं ये ए के बारे में, ये ए था, हाँ। तो ए है मिल रहा है आपको, ये ए कुछ है, और ये आपको एरो गलत बना दिया मैंने। एरो शुड बी लाइक दिस। ऑक्सीडेशन करके ये कंपाउंड मिल रहा है, तो यानी ये जो भी कंपाउंड है ये उससे कम ही है। या तो अगर ये एसिड तो हो नहीं सकता क्योंकि सिंगल ओ है, तो ये एल्डिहाइड या कीटोन है। अगर मैं ऐसे कीटोन मानूं तो हमारे 7 कार्बन है, तो 6 तो हो गए और एक 7 कार्बन तो कंप्लीट हो गए, तो ये कीटोन तो नहीं है। तो मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ ये कि एल्डिहाइड है। चेक कर लेंगे आगे। तो ये एल्डिहाइड अगर हुआ, ए अगर एल्डिहाइड है ऑन ट्रीटमेंट विद NaOH इट फॉर्म्स कंपाउंड बी। तो अगर NaOH के संग जो होता है ये CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा, इट फॉर्म्स बी एंड सी। ओके, ये आपको अगर हिंट मिल रही हो तो मुझे लग रहा है ये कैनिजारो रिएक्शन की तरफ जा रहा है प्रोडक्ट बी एंड सी, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, और NaOH यूज करने के बाद, कॉन्क NaOH यूज करने के बाद हमारा एक प्रोडक्ट ऑक्सीडाइज हो जाता है और एक रिड्यूस हो जाता है। दिस इज एग्जांपल ऑफ कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन, क्योंकि यही ऑक्सीडाइज करने के बाद दोबारा ये देगा। अगर एक ये बन रहा है तो बी एंड सी बोला है उसने, तो एक ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, तो ये वाला प्रोडक्ट ऑक्सीडाइज हो गया और ये वाला रिड्यूस हो गया, बी वाला। सो बी on oxidation gives back A, C the sodium salt of an acid। CO नेगेटिव, ऑब्वियसली CO नेगेटिव अकेला तो रहेगा नहीं, ये Na पॉजिटिव के साथ ही रहेगा। यहाँ मैं Na पॉजिटिव लिख देता हूँ। When C is treated with soda lime, हमें पता है सोडियम सॉल्ट जो होता है वो सोडा लाइम के संग ट्रीट होता है जब yields an aromatic compound D। तो आपको ये एरोमेटिक कंपाउंड दे देगा D। तो D हमारा, हमें पता है कि हमारे इस टाइप की चेन मिलती है, कभी भी सोडा लाइम के संग रिएक्शन होती है तो CO2 निकल जाती है और आपको इसका ये सिर्फ जो बचा हुआ कंपाउंड है वो रह जाता है, तो हमारे डी प्रोबेबली ये होगा। तो यहाँ कैनिजारो रिएक्शन पर एक क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको ये सोचना होता है कि जो है NaOH के संग रिएक्शन और दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो एक ऑक्सीडाइज हो रहा है और एक रिड्यूस हो रहा है। ये आपका हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an organic compound A on treatment with ethyl alcohol gives carboxylic acid B and C। दो कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहे हैं, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड B एंड यहाँ थोड़ा एरर है, एंड C अलग है, C समथिंग एल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड B पर ही कहानी खत्म हो जाती है, एंड समथिंग C। तो A से हमारे को एसिड और एक समथिंग C मिल रही है और अल्कोहल के संग रिएक्शन हो रही है। एस्टर हो सकता है क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है, एस्टर हो सकता है क्या, बताना। एस्टर कैसे हो सकता है? एस्टर की रिएक्शन एल्काइल अल्कोहल के साथ तो कोई होती ही नहीं है, एस्टर तो नहीं होगा। देखते हैं क्या होता है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन बताएगा आगे क्या करना है। gives carboxylic acid B and something C। hydrolysis of C under acidic conditions gives B and D। okay, B plus C मिला,
किसी की रिएक्शन करने से, ए की रिएक्शन करने से इथाइल अल्कोहल, इसको मैं ETOH लिख दूं शॉर्टकट। ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, ये कुछ इस तरह का है, आपकी चेन आगे लगी हुई है। सी, हाइड्रोलिसिस ऑफ सी, अगर सी की हाइड्रोलिसिस करी मैंने, H+H2O के संग रिएक्शन करी, तो मेरे को दे देता है ये BND। इसकी हाइड्रोलिसिस करने से दोबारा बी मिल गया और डी मिल गया एक, और एक कंपाउंड डी मिल गया। तो जितना मुझे लग रहा है डी सी मेरे को एक एस्टर लग रहा है, क्योंकि अगर एस्टर होगा कोई, अगर एक एस्टर होता है सी डबल मंडो ओ समथिंग समथिंग, और अगर उसकी क्लीवेज करी जाए तो हमारे को एक कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है और एक अल्कोहल मिलता है। तो डी एक अल्कोहल लग रहा है मेरे को, मैंने नहीं कहा है, वो लग रहा है। आगे देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ डी विद KMnO4 गिव्स बी। डी की भी ऑक्सीडेशन करके बी मिल रहा है, तो यानी सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डी में भी, और सी मतलब सी जो है हमारा एक सिमेट्रिक एस्टर है, मतलब अगर 3 कार्बन इधर 4 कार्बन इधर तो 4 कार्बन इधर, सिमेट्रिक है। इतना मेरे को पता चल गया एक एस्टर है और सिमेट्रिक है, क्योंकि डी का अल्कोहल है और अल्कोहल की KMnO4 के संग ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे को एसिड मिल जाता है, अगर वो प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो। टर्शरी में मुश्किल से मिलता है, ठीक है। बी ऑन हीटिंग विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव्स ई विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O। इसकी रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करने के बाद ये हमारे को दे देता है ई विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O। C3H6O वाला कोई कंपाउंड दे देता है हमारे को ये, जो कहाँ पर थे हम, हाँ, ई दे देता है हमारे को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ आपने अगर पढ़ा हो तो रिएक्शन जो होती है ये मेरे को इस टाइप की लग रही है, जब कोई भी हमारा एसिड होता है और उसके 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं और कैल्शियम के संग जाता है वो, तो फिर उसके बाद वो रिएक्शन कंबाइन करती है। अगर आपको कुछ इस तरह का याद आ रहा हो तो इसमें हमारा एल्डिहाइड या कीटोन बनता है, और क्योंकि ये एसिड है तो हमारा प्रोबेबली ये कीटोन है। C3H6O का कोई एक कीटोन बन रहा है, तो यानी C3H6O का कीटोन। मैं इसे क्लियर कर देता हूँ थोड़ा। C3H6O का कीटोन कौन सा हो गया, एक ही पॉसिबिलिटी है, ये हो गया ई। ई ये है, तो ई ये है हमारा, और ये कॉम्बिनेशन से बना है, तो यानी 3 कार्बन है इसमें, तो ये जरूर कंबाइन किया होगा। बी विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव्स even molecular formula C3H6O। E does not give Stolins test और reduce Fehling solution, यानी E एक एल्डिहाइड नहीं है, तो E एक कीटोन हो गया ये, ठीक है। बट फॉर्म्स 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन, इसका मतलब है 2,4 DNP दे रहा है, यानी E एक डेफिनेटली कार्बोनिल कंपाउंड है और एक कीटोन है। तो E अगर E कीटोन है तो हम प्रोबेबली क्या 100% स्ट्रक्चर बता दिया हमने E का। इस क्वेश्चन में तो सब कुछ क्लियर ही कर दिया, मैंने आगे का नहीं पढ़ा था। ये E का 100% यही है, ठीक है। E पता चल गया। अब E से उल्टा चलते हैं, E से हम B की तरफ चलते हैं। B क्या होगा, B ऑन हीटिंग विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव्स E। तो B हमें को लग रहा है कि ये हो सकता है B, ठीक है। बी मेरे को लग रहा है ये हो सकता है, जो कि कंबाइन करके ये बना होगा, है ना। अच्छा, उसके बाद वो कह रहा है कि बी प्लस डी, और बी और डी में सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, तो अगर ये CH3COH है तो ये अल्कोहल CH3CH2OH रहा होगा। इतनी भी बात अब क्लियर हो गई, सारे जो हैं डॉट्स कनेक्टेड हो गए। बी हो गया, डी हो गया क्लियर। अब हमारे को सी रह गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बी एंड सी, और समथिंग सी। अगर समथिंग सी है तो मैंने सी को एक एस्टर बोला था, तो एक एस्टर वो भी सिमेट्रिक एस्टर, तो मेरे को लग रहा है ये हमारा इस तरह का हो सकता है।
सी ए हो सकता है, अगर हमारे को यहाँ से क्लीवेज होगी तो CH3COH मिल जाएगा, और यहाँ से हमारे को CH3COH एल्कोहल मिल जाएगा CH3CH2OH। तो सी हमारा एक एस्टर हो गया ये। अब ए रह गया, तो भाई अगर हमारे को अल्कोहल अगर एसिड मिल रहा है और एक एस्टर मिल रहा है, तो वही एक ही चीज होती है पॉसिबल, वो है एक एसिडिक एनाइड्राइड, क्योंकि उसी के अंदर इतनी दम होती है कि वो इतनी सारी चीजों को झेल सके। 2 कार्बोनिल और 1 ऑक्सीजन, उसको वही झेल सकता है। ठीक है, काफी ज्यादा दम चाहिए उसके लिए। तो हमारा ये हो सकता है CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O। कितने हैं हमारे पास, 1 2 कार्बन और 1 2 3 4, तो ये इस तरह का हो सकता है। ठीक है, ये हो गया, 4 कार्बन आ रहे हैं ना इससे, तो ये हो सकता है ये यहाँ से हमारा एसिड निकल गया हो, है ना, और हमारा किससे रिएक्शन हुई थी इसकी, इथाइल अल्कोहल से, और ये वाला पोर्शन चला जाएगा, ये जो नीचे वाला है, ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये चला जाएगा अल्कोहल के साथ। तो ये CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन से ये बन जाएगा और ऊपर वाले पोर्शन से एसिड बन जाएगा। तो ये एक बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन था, इसे कर लेना। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑर्गेनिक कंपाउंड A C3H4 ऑन हाइड्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 HgSO4। इससे हमें पता चल जाना चाहिए कि ये हमारा एक एल्काइन है। हमारी एल्कीन भी हो सकती है, पर C3H4 की कोई एल्कीन नहीं होगी, एल्काइन है हमारी। हाइड्रेशन हुई है H2SO4 HgSO4 के बीच में, Sc3H6O दे रहा है। ठीक है, और वो इसके संग वट क्रिस्टलाइन देता है, मतलब एक कार्बोनिल कंपाउंड देता है। तो कार्बोनिल कंपाउंड हमारा ये हो सकता था, या फिर हमारा कार्बोनिल कंपाउंड ये हो सकता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन बता देगा क्या करना है। इट गिव्स नेगेटिव टॉलरेंस, यानी टॉलरेंस टेस्ट नहीं देता वो, ये तो ये वाली चीज कट गई, हमारा ये कंपाउंड हो गया बी। एंड पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, यानी एक मिथाइल कीटोन है, ये भी इस चीज को कंफर्म कर रहा है। एंड ऑन ड्रास्टिंग ऑक्सीडेशन बी गिव्स सी, ड्रास्टिंग ऑक्सीडेशन करने पर बी देता है हमारे को सी। ऑक्सीडेशन करेंगे तो सी देगा C2H4O2 along with HCOOH along with HCOOH। तो हमारे को अगर ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन करेंगे इसकी, तो ये हमारे को COOH हो गया, ये दे देगा, यहाँ से बॉन्ड क्लीव हो जाएगा। और हमें पता है कि ये छोटे वाले ये दो सिमेट्रिक है, तो CH3 किसी भी CH3 के संग जा सकता है। तो ये हमारे को एक पार्ट जो होता है वो CH3COH हो जाएगा और एक पार्ट HCOOH हो जाएगा। बस हो गया, क्वेश्चन सॉल्व। तो ये हमारे को सी ये रहा, C2H4O2, देखो C 2 है, H 4 है और O 2 है। क्वेश्चन सॉल्व, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 12 है, हाइड्रोकार्बन A C4H8, यानी ये एक एल्कीन है। ऑन रिएक्शन विद HCl गिव्स B C4H9Cl, यानी एल्कीन की रिएक्शन हो रही है HCl से, तो हमारा कुछ RCl बन रहा है। ठीक है, वेल एंड गुड। विच ऑन रिएक्शन विद 1 मोल अमोनिया गिव्स C, ये 1 मोल अमोनिया के संग रिएक्शन कर रहा है, इससे हमारे को C मिल रहा है C4H11N, तो हम इसे C4H9NH2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऑन रिएक्शन विद NaNO2 NHCl फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद वाटर, इसकी रिएक्शन कर रहे हैं NaNO2 HCl से, तो ये हमारा डायजोनियम बनता है। ये हमारे को स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि डायजोनियम बनता है। ऑन रिएक्शन विद NaNO2 NHCl फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद वाटर, और डायजोनियम की अगर वाटर से रिएक्शन करेंगे तो हमारे को सिंपल कंपाउंड मिल जाता है, हाइड्रोकार्बन मिल जाता है, दोबारा से एल्केन टाइप मिल जाता है। ठीक है, और वो बोल रहा है कि ऑप्टिकली एक्टिव अल्कोहल डी मिल रहा है हमारे को, ऑप्टिकली एक्टिव अल्कोहल डी मिल रहा है हमारे को। तो यानी ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब है उसमें काला सिलेंडर होगा, तो यानी अल्कोहल इस टाइप का होगा, मतलब ये कंपाउंड है हमारा डी, क्योंकि देखो CH3 है, एक तरफ H है, एक तरफ CH2CH3 और एक तरफ OH है, काले सेंटर है, तो हमारा डी तो ये हो गया। ठीक है, सी
हमारे डी मिल गया हमारे को, और ए कंपाउंड का निकालने के लिए वो कह रहा है 2 मोल्स ऑफ एसिटाइलडिहाइड दे रहा है। एसिटाइलडिहाइड दे रहा है तो मतलब ए भी जो है निकल आएगी। इन दोनों को मैंने कहा है, शॉर्टकट बताया ही है, इन दोनों को कंबाइन कर दो। इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो ये हट जाएगा, तो हमारा ए जो हो गया वो ये हो गया, CH3CH CH3, ये हमारा ए हो गया। ठीक है, ए आ गया। ए के बाद हमारा उसके संग जो है वो Cl आ जाएगा, तो बी जो हो गया हमारा वो हो जाएगा CH3CH CL CH2CH3। बी आ गया। सी में अमोनिया के संग NH2 आ जाएगा, तो सी वाला जो कंपाउंड होगा उसमें यहाँ पर NH2 लग जाएगा। जो हमारा डी होगा वो अल्कोहल है। डी कहाँ है, ये हमारा डी अल्कोहल हो गया। ठीक है, एक्टिवली ऑप्टिकली एक्टिव अल्कोहल दे दिया, तो ये हमारे कंपाउंड हो गया। इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपाउंड ए C2H4O on oxidation gives B C2H4O2। ठीक है, A ऑक्सीडेशन दे रहा है B C2H4O2, यानी एक O है और यहाँ 2 O है, यानी ये हमारा कार्बोनिल हो सकता है और ये हमारा एसिड हो सकता है। पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग द पॉसिबिलिटी। ए अंडरगोज आइडोफॉर्म रिएक्शन, तो ए एक मिथाइल कीटोन है 100%। ए इज अ मिथाइल कीटोन, CH3 डबल बॉन्ड, दो C2 खत्म हो गए और H 4 है, तो यहाँ पर एक 4 आ जाएगा। ये C2H4O, compound A is this, because it undergoes isoform reaction, so it is a methyl ketone, that is definite. But we have to see the formula also. Formula says C2, only 2 carbons are there, so it can't be a ketone, it can only be an aldehyde. Okay, compound A we got to know, and on oxidation it will give an acid, so the acid will be CH3COOH. It is absolutely clear. Okay, crystal clear. This is an acid B to give yellow precipitate and reacts with HCN to give C. We know very well, it will form cyanohydrin. Okay, it will form cyanohydrin. We know this very well. This is C, which on hydrolysis gives 2-hydroxypropanoic acid. This on hydrolysis, this CN will convert into COH and we will obtain this. So this is our resulting compound. Okay. Next, we move to the next question. The last question for the day. This is the question from ISC to 2023 sample paper. You will get to see one question paragraph based in 3 marks. You will get to see. This is my assumption. You will get to see it. Okay. So we'll read this question. The question is saying an organic compound A on treatment with aqueous KCN produces B. So there's a something compound A and with KCN means A has something which is a good leaving group. I call it X, something X. Okay, and it is reacting with KCN. It gives B, means it is RCN, something RCN. This on reduction with Na C2H5OH. We know this very well. This reaction is called Mendius reaction. Mendius reaction कहते हैं इसे, and the cyanide gets converts into amine. This is Mendius reaction. This is the compound C with molecular formula C2H7CH2, means it is CH3CH2 NH2 C2H7NH2. C is this. If C is this, then this RCNB is, what will be B? B will be CH3 CN and A will be CH3X, something CH3X. A will be CH3X, with KCN it is CH3CN. So this is A, this is B, this is C, and then it says C on reaction with NaNO2 and HCl produces D. So we know this with NaNO2 and HCl it gives alcohol, so it will give CH3CH2OH. This is our D.
And D, on treatment with acetic acid in presence of CONC-H2SO4, we know that it will give an ester. Okay, we will get an ester. This is the resulting ester E. So, produces a sweet smelling compound. The question had one subpart which said what is the name of the reaction from D to A. The reaction name is esterification reaction. Okay, so the A can be, you can put Cl here. Okay, Cl is a good leaving group. You can put Cl here, CH3 Cl with KCN gives CH3Cn. Okay, you can, so A can be CH3Cl. Okay, this is the questions from paragraph. These are the paragraph based questions for your exams. You can practice them once more. You can watch the video, and I will upload the PDF in the description box as well as on the Telegram channel too. In the next video, we will do the conversions. If you have any doubts, then you can ask on the Telegram channel and on in the comment box. Also, if you like this video, then please do like, share, subscribe, and don't forget to comment your queries, as well as if you have any suggestions, then you can suggestions are most welcome. Thank you very much. Goodbye, take care, and don't forget to subscribe. Thank you very much.